Good morning, student friends. See, today साइंस सेकंड पार्ट में से लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. हियर लाइफ प्रोसेस, you know, in our life, in organism, multicellular organism, there are many systems are working. See, in multicellular organism, many systems are working like respiration, digestive system, nervous system, blood circulation, excretory system, and reproductive system, etc. Such there are so many systems are working in our life process, and in order to complete this process, in order to run this process, in order to activate this process, energy is needed, and this energy is made available from our food items. See, relation between nutrients and energy. In daily activities, whatever the foodstuffs we are consuming, अपने डेली लाइफ में जो भी अनाज हम लोग खाते हैं, that food stuff is digested, and after digestion होने के बाद the food is converted into nutrients in the cells. कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स, then फैटी एसिड्स, vitamins and minerals. Such type of nutrients are made available from our foodstuffs. These nutrients which are taken from the foodstuff, they are circulated among the each and every cell of the body, each and every organ of the body. Along with nutrients, oxygen is supplied to each and every cell. See, in multicellular or unicellular, basically there are two types of respirations are there. Respiration on physical body level, respiration on cell level. See, first, a respiration on physical body level, when any organism, any animal oxygen is taken, oxygen लेता है, it means there is an exchange of oxygen and carbon dioxide between organism, physical body and atmosphere. हमारे किसी एनिमल बॉडी, मल्टीसेलुलर बॉडी और एटमॉस्फेयर में देयर इज एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. दिस इज नोन एज द रेस्पिरेशन ऑन फिजिकल बॉडी लेवल. द नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज सेल लेवल रेस्पिरेशन. See, whatever the nutrients are made available from the foodstuffs, they are taken away from digested food to each and every cell and different organs of the body by blood circulation. Along with oxygen is also taken to reach the cells. A cell के पास जब ये दो चीज पहुंचते हैं, first thing nutrients
and oxygen. Inside the cell, there is oxidation takes place. सेल के अंदर जाने के बाद न्यूट्राइड्स एंड ऑक्सीजन, there is a reaction takes place between these, and through the process of oxidation, energy is made available. First, we are going to see the energy from glucose. Before saying the energy from glucose, see, still there are two types of respirations. In multicellular or unicellular, oxygen is necessary for the production of energy, and this energy is gained from the oxidation. It means oxygen and न्यूट्राइट्स. इट मीन जब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. There are some organisms, those organisms which are absent in the presence of oxygen. ऐसे कई माइक्रोब्स हैं कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में they are not working, they are not exhausted. But such organisms also, energy is needed to activate their body organs, to motion, and different activities रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी क्रिएट करते हैं फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी इज क्रिएटेड. नाउ सी, अंडर द एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज से एनर्जी कैसी प्रोडक्शन किया जाती है उसके बारे में हम देखना चाहते हैं. सी फ्रेंड्स, इन अवर डेली एक्टिविटीज, जितने भी हम लोग एक्टिविटी, डिफरेंट काइंड्स एंड क्वालिटीज ऑफ एक्टिविटीज किया जाता है, स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, थिंकिंग, लाइक दिस, सो मेनी एक्टिविटीज आर डन. ऐसे कितने एक्टिविटीज है इन अवर डेली लाइफ, सारी की सारी एक्टिविटीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी सप्लाई किया जाता है तो ग्लूकोज से सप्लाई किया जाता है. So first we are going to see the energy production through the process of glucose. Glycolysis के प्रोसीजन से glycolysis and energy production. See friends, ग्लूकोज जब इनसाइड सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन दोनों का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, इट मींस व्हाट हैपेंस, तो ऑक्सीडेशन होती है. उस ऑक्सीडेशन, इट मींस व्हाट, ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से ग्लूकोज का डाइजेशन किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप, इन 3 स्टेप्स, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लूकोज. इन फर्स्ट स्टेप, इनसाइड द सेल जब ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करती है और ग्लूकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस ग्लूकोलिसिस प्रोसेस से हमें क्या क्या मिलते हैं. तो वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्लूकोलिसिस प्रोसेस फर्स्ट pyruvic acid, ATP, water molecules, NADH2. These products
we are getting through the glucolysis. ग्लूकोलिसिस के माध्यम से अपने को इतनी सारी चीजें we are getting. ग्लूकोलिसिस से ऑक्सीडेशन होने के बाद ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. ATP एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी को और बॉडी को जब जब किसी एनर्जी की जरूरत होती है तो ATP इज अ स्टोर हाउस. एनर्जी ATP के रूप में स्टोर किया जाता है और जब जरूरत होती है तो इट इज टेकन एंड यूटिलाइज्ड. द एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हमें ग्लाइकोज के माध्यम से पायरुविक एसिड, ATP, वाटर मॉलिक्यूल एंड NADH2 इतने सारे एलिमेंट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्लूकोलिसिस. तो उसी ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनती है तो पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में फिर से और एक बार हमको एनर्जी यानी ATP, वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2 और FADH2. NADH2 और FADH2 जो है वो टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का जब डाइजेशन होता है उस प्रोसेस में FADH2 और NADH2 दीज आर द कोएंजाइम्स. ये एंजाइम्स है वो जो ग्लूकोज के डाइजेशन में हेल्प किया करते हैं. तो इतने सारे यानी हर स्टेप में ATP एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP और अलॉन्ग विथ ATP अलग एलिमेंट्स भी हमें मिलते हैं. इन द सेकंड स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल. जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है तो वो एसिटिल कोएंजाइम सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक सेल ऑर्गेनेल्स होती है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल की जो पावर स्टेशन है उसे कहा जाता है. तो ये एसिटिल कोएंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है. जब when it enters inside the mitochondria ऑर्गेनेल्स में एंटर करने के बाद वहां 3 acids they are participating in the chemical reactions. See, पायरुविक एसिड जो है वो ग्लूकोज से हमें मिलती है. प्रोटीन से एमाइनो एसिड्स और फैट से फैटी एसिड्स. These 3 types of acids are participating inside the mitochondria, which is recognized as a power station of the cell. सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गन्स है, ऑर्गेनेल्स है जो सेल का पावर स्टेशन है. उस पावर स्टेशन में these 3 types of organic acids, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड्स, फैट से फैटी एसिड्स और प्रोटीन से एमाइनो एसिड्स, these 3 types of organic acids are participating. There is a cycle, action and reaction goes on, takes place. Among these actions and reactions of inside these 3 types of chemical acids हमें ATP मिलते हैं, NADH2, FADH2, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड. इतने सारे क्रेब्स साइकिल के माध्यम से वी आर गेटिंग. क्रेब्स साइकिल के माध्यम से और एक बार हमें ATP मिल रहा है, NADH2, FADH2. These are the coenzymes which are helping in the digestion of glucose.
वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एटीपी जो है एनर्जी 1 सेकेंड रिलीज हो रहा है. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ डाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज. एंड इन द थर्ड स्टेप ग्लूकोज जो है वो थर्ड स्टेप में डाइजेस्ट होती है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है. दिस इज द Krebs cycle is the second step of the oxidation of glucose. In the third step, electron transfer reaction. See, FADH2, NADH2. FADH2 और NADH2 ये जो टू एंजाइम्स है जो ग्लूकोज के डाइजेशन में हेल्प करने वाले, हर स्टेप ऑफ द ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में दे आर मेड अवेलेबल. ये सारे के सारे FADH2 and NADH2 molecules are participating in the third stage of the ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के थर्ड स्टेप में जितने भी सारे FADH2 NADH2 ये जो कोएंजाइम्स है ये थर्ड स्टेप के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, डाइजेशन में दे आर पार्टिसिपेटिंग. इन एंड दिस FADH2 NADH2 जो है इनसे और एक बार एटीपी एनर्जी रिलीज होती है. कहाँ? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में. तो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया 3 टाइप्स ऑफ एसिड्स आर टेकिंग प्लेस, आर टेकिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस होती है इसका मतलब क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है इसका मतलब electrons are taken and received. Electrons are received and electrons are taken. This process is going on between the chemical reactions of among these 3 acids. तो electrons are taken and electron received. इसका मतलब ये क्या है कि electrons का ट्रांसफर किया जाता है from one element to another element, from one place to another element in different stages and different reactions activities. इसी का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में FADH2 एंड NADH2 जो लास्ट बचे हुए कोएंजाइम्स है ग्लूकोज के डाइजेशन के थर्ड स्टेप में, इसका भी कंप्लीटली डाइजेशन किया जाता है थर्ड स्टेप में. दस इन दिस वे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज का दिस 3 स्टेप्स में किया जाता है और सेल को जितनी भी की एनर्जी रिलीज किया जाता है वो whenever and wherever energy is needed, it can be utilized by cell and remaining energy is once again stored in the ATP form. This is all about the digestion of glucose. और इसी का दूसरा नाम भी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी द रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी रेस्पिरेशन होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. Now we are going to see about the anaerobic respiration क्या होता है. स्टूडेंट फ्रेंड्स, तो याद रखिए जब अपने बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल सेल्स, जब भी फास्टिंग के टाइम पे, हंगर के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है, तब ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि ग्लूकोज की इनसफिशिएंसी महसूस होने लगती है. एट दैट टाइम or there are some microorganisms which can't live in the presence of oxygen
ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो एक्साइट नहीं हो सकते हैं, उनके एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है और एडप लगने में उस बॉडी को, उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी को जो जरूरत है वो जरूरत पूरा की जा सकती है। दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड अचीव किया जाता है। और ये पायरुविक एसिड जो है with the help of some microbes or mitochondria which are present inside the organism, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कई माइटोकॉन्ड्रिया नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। with the help of some microorganism, pyruvic acid is fermented. इस pyruvic acid का fermentation किया जाता है। pyruvic acid is fermented with the help of some microorganism. pyruvic acid का fermentation किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, और in the process of fermentation pyruvic acid either converted into alcohol or organic acid. तो लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो those organisms which can't exist in presence of oxygen, ऐसे ऑर्गेनिज्म एनर्जी की पूर्तता, एनर्जी क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। उसमें से बेसिकली ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, और पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन किया जाता है। तो हियर pyruvic acid or fermentation, these two steps are very important. They are play a very important role in the production of energy. Fermentation के माध्यम से pyruvic acid का एक तो अल्कोहल में कन्वर्जन किया जाता है, नहीं तो ऑर्गेनिक एसिड that is lactic acid में कन्वर्जन किया जाता है। Already you know this thing, आप ये जानते हैं कि अल्कोहल और एसिड ये एनर्जी के सोर्स है। आप बोलेंगे कैसे? आपने लास्ट पीएच स्केल में देखा है पीएच स्केल जो होती है, इस साइड जो होती है एसिड होते हैं, इस साइड अल्कोहल होता है। पीएच स्केल जब 7 होता है उस टाइम एनी मॉलिक्यूल्स, एनी सब्सटेंस न्यूट्रल के स्टेट में होता है। इट मींस इट इज नाइदर एसिडिक नॉर अल्कोहलिक, न्यूट्रल, कंप्लीटली न्यूट्रल के स्टेट में होता है। जब इस 7 से अगर आप इस ओर जाओगे, जैसे जैसे एज यू आर गोइंग फ्रॉम 7 to 14th, इट मींस अल्कोहल की हीट एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी गॉन इंक्रीजिंग एंड अल्कोहल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है मींस व्हाट? इट मींस हीट एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और जैसे भी आप 7 से 0 रिवर्स आएंगे, उस वक्त एसिड की हीट एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी गॉन इंक्रीजिंग। इट मींस यहाँ एसिड की एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी ये 0 है। जैसे हम लोग 0 की तरफ से आएंगे तो एसिड में इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब एसिड कॉन्सेंट्रेट होते रहता है। इसी का मतलब ये है कि एसिड से अल्कोहल जो है इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
एनर्जी स्टोर करने के लिए ये भी एक इंस्ट्रूमेंट्स है। तो सच काइंड ऑफ एनिमल्स एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड जब उनको जरूरत होती है तो यूटिलाइज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। Clear the point? Now next we are going to see उसके बाद जो है एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट फूड स्टफ्स। हमने देखा है कि जब हम डेली लाइफ एक्टिविटीज में फूड कंज्यूम करते हैं, फूड स्टफ डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स वी आर गेटिंग, न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो उस वक्त फैट्स भी और अमाइनो एसिड्स भी वी आर गेटिंग। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि ग्लूकोज इज वेरी इनसफिशिएंट कंडीशन होती है और जब एक्सरसाइज करता है ह्यूमन बीइंग, हम लोग कहीं जब एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त भी एरोबिक माध्यम की रेस्पिरेशन से एनर्जी कन्वर्जन होता है। उस वक्त हंगर स्ट्राइक जब उपवास मार होती है, जब फास्टिंग होता है, उस वक्त भी जब भी ग्लूकोज की कमती महसूस होती है, उस वक्त मसल में और लीवर में और सेल में जो स्टोर किया है अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, दे आर यूटिलाइज्ड। अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स से भी once again these acids are converted into acetyl coenzyme। इन दोनों एसिड से भी एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्जन किया जाता है। वंस अगेन एज यूजुअल लास्ट के मुताबिक एसिटिल कोएंजाइम से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इट मींस अमाइनो एसिड्स। और दूसरी कि अमाइनो एसिड्स एक ऐसी चीज है कि अपने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेल्युलर एनिमल में डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट मसल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट प्रोटीन्स की जरूरत होती है, डिफरेंट काइंड्स एंड क्वालिटीज के प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अमाइनो एसिड जो है उसका बेसिक कंपोनेंट है कि जिससे प्रोटीन्स बनाया जाता है। मगर प्रोटीन के साथ जब भी प्रोटीन जो बनती है, अमाइनो एसिड उसका मेन कंपोनेंट है। अमाइनो एसिड के साथ जब मिनरल और प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और मिनरल इनका कॉम्बिनेशन जब किया जाता है तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स अलग अलग सेल में, अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग मसल्स में अलग क्वालिटी के प्रोटीन्स बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। जब जहाँ भी जिस प्रोटीन की जरूरत होती है उस टाइप का प्रोटीन्स कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड उस टाइप के मिनरल्स के। इट मीन्स व्हाट? अमाइनो एसिड्स और स्पेशल काइंड्स एंड क्वालिटीज ऑफ मिनरल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशंस में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। इट मीन्स प्रोटीन्स है क्या चीज? प्रोटीन्स एक ऐसा मैक्रोमोलेक्यूल है कि डिफरेंट काइंड्स एंड क्वालिटीज ऑफ अमाइनो एसिड्स दे आर कम टुगेदर एंड फॉर्म अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। उस चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को मैक्रोमोलेक्यूल ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के चेन को ही, बंच ऑफ अमाइनो एसिड्स को ही, क्लस्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स को, चेन को ही मैक्रोमोलेक्यूल ऑफ, इस प्रोटीन के, इस अमाइनो एसिड की चेन को ही प्रोटीन कहा जाता है।
ये प्रोटीन अपने यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स डिफरेंट रोल करता है। जैसा मान लो ब्लड में हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज, ये प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स आर इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये अलग टाइप के प्रोटीन्स है कि जिनके जरिए हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज बनाया जाता है। अपनी स्किन में जो होती है मेलेनिन नामक प्रोटीन्स होता है कि जिनके जरिए एक ऐसा जो स्टिकी सब्सटेंस बाहर आता है कि जो ऑलवेज द बॉडी कीप्स वेट। पैंक्रीज में भी इन पैंक्रीज इंसुलिन ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन्स बनाए जाते हैं कि उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। जहां जिस प्रोटीन की जरूरत होती है उसका फंक्शन भी अलग होती है। मान लो अपने जो बोन्स होते हैं, बोन में ऑसिन नामक एक प्रोटीन्स होती है और अलग एंजाइम्स में भी जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में भी हिबिस्को नामक एक प्रोटीन्स होता है। इसका मतलब यह है कि अपने बॉडी में अलग अलग मल्टीसेलुलर बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शंस करता है और डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन से बनाया जाता है। क्योंकि जहां जिस प्रोटीन की जरूरत होती है that protein is made by that specific muscles or cells. So this is what about the proteins. उसके बाद विटामिन्स। आप जानते हैं विटामिन्स क्या चीज है? विटामिन इज a heterogeneous group of chemical substance. heterogeneous टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस का एक क्लस्टर होता है, एक बंच होता है जो हर सिस्टम के एक्टिविटी जो आसान से बनाई जाती है, प्रॉपर चैनल से बनाया जाता है, प्रॉपर चैनल से रन किया जाता है, दैट इज ये विटामिन्स का रोल होता है। Specifically, there are 6 kinds of proteins are there. C, A, B, C, D, E or K. These types of food proteins are needed in our daily activities, in our daily life process. आप जानते हैं वाटर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ न्यूट्राइंट्स इन एनिमल बॉडी। वाटर भी एक स्पेशल टाइप का न्यूट्राइंट्स कहा जाता है बिकॉज हमारे सेल का जो 60 to 70% बॉडी इज कवर्ड बाय वाटर। 60 to 70% अपना बॉडी वाटर से भरा हुआ है। It means water is covered. 65 to 70% of our body is occupied by water. अपना जो सेल है, सेल का जितना वेट होता है उतना वेट के प्रोपोर्शन में 70% वाटर इज इन्वॉल्व इन अवर सेल। अपने ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और एनी टाइप ऑफ बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में नियर अबाउट 90% वाटर इन्वॉल्व होता है। इट मीन्स अगर अपने बॉडी में से वाटर कमती हो गया तो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस है, एक्टिविटीज है,
डिस्टर्ब हो जाती है और फंक्शंस भी डिस्टर्ब होते हैं। अलग हमें फटीग्स जैसा एक्सपीरियंस होता है। इट मीन्स water is also acting as one special kind of nutrients. This is all about the water. Now we are going to discuss about cell division. आप जानते हैं ऑर्गन का हर पार्ट, हर ऑर्गन, हर सिस्टम, हर मसल्स ये सेल से बना हुआ है। और सेल में जो रहने वाले आरएनए है, डीएनए है, वो सेल का कंट्रोल करते हैं, सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और हेरिडिटरी जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो सेल जो है वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल का जो डिवीजन होता है वो 2 टाइप से डिवीजन होती है। Mitosis type of cell division and meiosis type of cell division. Cell का specifically there are 2 types of cell divisions are there in any type of organisms. Unicellular में mitosis type of cell division होता है और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म टेक बर्थ बनती है। तो और कहाँ सेल डिवीजन होती है? सी माइटोसिस का सेल डिवीजन स्पेसिफिकली सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है। तो ये कहाँ होती है? सपोज इन एनी काइंड ऑफ इलनेस से हमें जब महसूस होती है कि वीकनेस महसूस होता है, तो वीकनेस रिकवर करने के लिए माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिविजन्स आर टेकन प्लेस एंड वीकनेसेस आर रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस माइटोसिस सेल डिविजन्स। जब किसी वजह से इंजर्ड होते हैं अपनी बॉडी, अपने ऑर्गन्स, जब इंजर्ड होते हैं, वुंडेड होते हैं और ब्लड बाहर जाता है, ब्लड निकल जाती है, तो वो जो पार्ट है वो हीलिंग करने के लिए माइटोसिस का सेल डिवीजन वहाँ इस्तेमाल किया करते हैं। तो माइटोसिस ऑफ सेल डिवीजन बॉडी का ग्रोथ करने के लिए, वुंड हील करने के लिए स्पेशली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन्स आर नेसेसरी। तो माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्या होती है? जब माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है, स्पेशली मेनली टू टाइप का डिवीजन, 2 स्टेज का होता है। माइटोसिस के सेल डिवीजन में फर्स्ट सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं और डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं।